working as manager and publication here at Jal Jivika will be hosting this Aqua Talk session for you all. This year, General Assembly of United Nations with FAO proclaimed 2022 as International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. This year will be an opportunity to celebrate the diversity of small-scale artisanal fisheries and aquaculture, highlighting the related innovation and to build and strengthen support and partnerships at all levels. इस वर्ष FAO के साथ संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2022 को लघु स्तरीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह वर्ष संबंधित नवाचार को उजागर करने वाले लघु स्तरीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि की विविधता का जश्न मनाने का अवसर होगा और सभी स्तरों पर समर्थन और भागीदारी का निर्माण और मजबूती करने का। The theme of this Aquatalk session will be the same. Now I would like to tell you about our organization. Jal Jivika was established in the year 2013 as non-profit organization. It is a registered social enterprise committed to the promotion of aquatic livelihood, securing food and nutritional security in rural India. The very essence of Jal Jivika lies in creating employment opportunities in the fisheries sector so as to reduce pressure on land as a resource. Jal Jivika has worked across different Indian states with more than 25,000 management practices. Now, I would like to tell you about our topic. Scirpus articulatus is widely distributed in India, especially in the districts of Central and North Bihar, as well as in other parts of country. The pops of its seeds are eaten as granular sweets. These underutilized seeds are often investigated for their nutritional, phytochemical, antioxidant, and antibacterial potential. Highest phenolic flavonoid and flavanol contents are present in this. Thus, it seems reasonable to consider Scirpus articulatus seeds as new valuable ingredient for food and nutraceutical application. Scirpus articulatus भारत में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, विशेष रूप से मध्य और उत्तरी बिहार के जिलों के साथ साथ देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी। इसके बीजों के गूदे को दानेदार मिठाई के रूप में खाया जाता है। इन कम उपयोग किए गए बीजों की अक्सर उनके पोषण, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी क्षमता के लिए जांच की जाती है। उच्चतम फेनोलिक, फ्लेवोनॉइड और फ्लेवोनॉल सामग्री मौजूद होती है। इस प्रकार स्क्रिपस आर्टिकुलेटस बीजों को भोजन और न्यूट्रिसिटिकल अनुप्रयोगों के लिए नए मूल्यवान घटक के रूप में मानना उचित प्रतीत होता है। Today, in this Aquatalk session, we have with us distinguished guest, Dr. Vidyanath Jha sir, who will be covering all the details about Scirpus articulatus. He is presently working as Professor of Botany and Principal at MLSM College, Darbhanga, Bihar. I welcome you, sir. And now I would like to ask him to share his experience and knowledge on the same. Sir, please. स्टार्ट करूं? मेरी बात सुनाई दे रही है? सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, ठीक है। नमस्कार। नीलकंठ मिश्रा जी, पारुल उप्रेती जी और अन्य लोग जो यहाँ ऑडियंस में हैं इस वक्त, आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया, लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये एक्वा टॉक्स सीरीज में एक्वेटिक लाइवलीहुड कलेक्टिव के अंतर्गत यह प्रोग्राम हो रहा है। स्लाइड्स करीब 40 से ऊपर हैं और स्लाइड्स बने हुए हैं अंग्रेजी में। मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ जैसा आप कर रही हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों मिला करके, तो मैं कोशिश कर रहा हूं।
असल में ये जो सिरपस आर्टिकुलेटस है, फैमिली इसकी साइपरेसी है, जिस कुल में आपको दूसरे दूसरे भी प्लांट सो होते हैं, खास करके साइप्रस के प्लांट जिसको मोथा बोलते हैं, या फिर पहले जो चटाई बनती थी शीतलपाटी साइप्रस की स्पीसीज की, तो उसी ग्रुप का ये है। इसको सेज फैमिली बोलते हैं। जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है और बहुत हार्डी नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बीच में होता है। और इसका नाम बॉटनी में बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम बदलते रहते हैं। तो अब इसका नाम हो गया है शिनोप्लेक्टिएला आर्टिकुलाटा। आर्टिकुलाटा मतलब जो बीच बीच में जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। अगला नेक्स्ट वन, ए पोटेंशियल एक्वेटिक क्रॉप इन मिथिला फ्लड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार। हम लोग उत्तर बिहार में हैं, मिथिला क्षेत्र में हैं, तो यहाँ इसकी दानेदार ग्रेनुलर स्वीट बनती है। नॉर्थ बिहार इज रिच इन लोटिक एंड लेंटिक वाटर बॉडी। लोटिक मतलब जो चलता हुआ पानी है, नदियाँ, और लेंटिक का मतलब स्थिर पानी। So lotic and lentic water bodies which constitute a repository of aquatic plants that are variously utilized for food, fodder, medicine, housing and other livelihood purposes. उसके बाद हमारे यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आदि हैं, जहाँ पर कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो वाटर लॉक्ड रहता है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल का जो पैटर्न है करीब करीब 120 सेंटीमीटर 1200 मिलीमीटर के आसपास होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में रेनफॉल का जो है अमाउंट वो घटता चला गया है, लेकिन फिर भी इस बार काफ़ी हुआ पानी। और ये नेशनल वेटलैंड एटलस के मुताबिक ये फिगर है। दीज वेटलैंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ मखाना एंड सिंघाड़ा। बोटेनिकल नाम दिया हुआ है यूरेलफेरॉक्स ट्रापानेटन्स। और इसके साथ साथ फर्स्ट इस एरिया में जो पहला एक्वेटिक प्लांट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइवलीहुड पर्पस के लिए, वो मखाना है। और दूसरे नंबर पर सिंघाड़ा आता है। और तीसरे नंबर, ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड क्रॉप है, ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड क्रॉप हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर ये खूबी इसको बोलते हैं। और इसमें रामदाना करके भी इसको लगाते हैं, लेकिन रामदाना अलग क्रॉप है, वो लैंड क्रॉप है, अमरैंथ जिसको बोलते हैं। काफ़ी रिच होता है प्रोटीन में, क्योंकि उससे इसके लावा, इसका जो लावा है, पॉप है, वो उसका लावा जो है वो पॉप बाहर से देखने में सभी एक जैसे लगते हैं। इसीलिए इसका सेल वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग इसको रामदाना कह के बेचते हैं। लेकिन इस इलाके में जो भी वो दानेदार मिठाई बेची जाती है वो वास्तव में यही खूबी ही है शिनोप्लेक्टिएला आर्टिकुलाटा की। और रामदाना के विषय मैंने कहा ही है। उसका नाम बोटेनिकल नाम अमरैंथस पोटेटस है। चौलाई भी उसको बोलते हैं। और काफ़ी रिच होता है प्रोटीन में। ये उतना रिच नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी रिच है। तो एक हिसाब से ये फूड प्लांट, एनर्जी प्लांट के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, Mithila area in North Bihar has been a land of high floods since ancient times. It has a fine network of natural and man-made water bodies that help the retention of both surface and groundwater. Wetlands in the region are a repository of aquaphytes that are variously utilized for livelihood purposes. Prolonged water loggings during rainy season help the lavish growth of diverse group of aquaphytes that serve as subsidiary or supplementary food for the humans and as green fodder to the domestic cattle. These aquaphytes and their procurement from the neighboring wilderness are very much the part of livelihood practices of the human populace inhabiting the area. Often these aquaphytes, as they are abundantly available in the vicinity, are not accorded the importance that they deserve. There is a need to subject them to the modern methods of processing by blending them with the staple food or fodder items that could yield the development of nutritionally more significant value-added products. मेरा इसमें ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी संख्या में ये सारे जो हैं वेटलैंड प्लांट्स वो ग्रो करते हैं। कोई अलग से कोई मेथड जो क्रॉप के लिए होता है पहले से वो कुछ नहीं है। सब ऑल ऑफ देम दे आर फाउंड इन वाइल्डरनेस। इतना है कि आफ्टर रेनी सीजन बहुत सारे लोग हैं, खास करके पुअर पीपल जो हैं, वो जा करके नेचर से
इसके डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं। और इसका जो फ्रूट है उसको वास्तव में इन्फ्रक्टेसेंस कहा जाता है, फ्रूट न कह के इन्फ्रक्टेसेंस कहा जाता है। और इस इलाके में कोई नोटिस, इसका खास नोटिस लोग नहीं लेते। अभी निकटवर्ती जो हमारा बंगाल है वहाँ यदि चले जाएं हम लोग तो वहाँ जो सब्जी मार्केट है सब जगह आपको कुले खड़ा मिले, कुले खड़ा करके मुठिया हैंडफुल करके वो बिकता है, कुले खड़ा। मैं एक बार गया था कि ये कुलेखड़ा क्या होता है, तो ये एस्टेराकैंथा स्पीसीज है, एकेंथेसी फैमिली का, और मुठिया बांध करके सो इसका लीफ बिकता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ब्लड बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस इलाके में हमारे खेतों में ये अजस्र रूप से यूं ही उगता है, नोबडी टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन बंगाल में थोड़ा सा वहाँ के लोगों के का जो फीडिंग बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, और जो भी चीजें मिलती हैं तो वो नफासत से उन चीजों को रखते हैं और उनका यूज करते हैं। लेकिन इस इलाके में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन, हाँ, Scirpus articulatus is a perennial glabrous plant with densely tufted robust stems which are light green and spongy। स्पॉन्जी होता है इसलिए वो पुल करता है, हाथ से आप उसको दबा सकते हैं और आवाज आती है। 15 to 150 centimeters high। The inflorescence arises below the middle of the transversely septate stem and the wide septa are visible externally at intervals। They are ovoid to cylindrical oblong, 0.5 to 1.8 centimeter long। The glumes are broadly ovate, concave, narrowed with an acute or subacute apex। Bristles are absent and the three stamens have linear yellow anthers। Three stamens का मतलब हुआ कि ये मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में नॉर्मल 3 के मल्टीपल में होते हैं। The plants of Scirpus articulatus yield black colored seeds that are consumed in the form of sweets in local districts of Bihar। The seeds are popped by roasting them on sand and their pops are processed into granular sweets after passing them in hot concentrated sugar solutions। इसको चाशनी बोलते हैं। It provides livelihood to the poor and backward classes of Bihar। More tasty sweets of khubhi are also prepared by mixing khoa, condensed milk, and are sold at a commensurate price। बिहार में, उत्तर बिहार में खास करके 2 स्पॉट हैं। एक है वो गांधी सेतु हाजीपुर, वहाँ पे इसका काफी कारोबार है, बड़ा कारोबार है। और दूसरा है गंगा के उस पार बाढ़ का इलाका, वहाँ भी इसका काफी कारोबार है। ट्रेनें जो उस से पास करती हैं उसमें आप देखेंगे वो खोआ भरा हुआ वो ग्रेनुलर स्वीट इसका बिकता है। और इसके जो बोटेनिकल कैरेक्टर्स हैं वो इसमें पैराग्राफ में है। नेक्स्ट वन, हाँ, ये एक पेपर है जो हाल में हम लोगों ने छापा है, Chenoplectiella articulata, a basis of sustainable livelihood in flood plains of North बिहार। किस तरह से इसको रामदाना कहा जाता है, किस तरह से ये लैक्टेटिंग जो एनिमल्स हैं उनको खिलाया जाता है, खास करके उनका दूध बढ़ाने के लिए, और इसको ऑर्गेनाइज्ड शेप देना जरूरी है इस बिजनेस को, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट वन, इसे, हाँ, इसी की जिस जर्नल में ये छपा है वहाँ वो हिंदी में भी एक पैराग्राफ मांगते हैं, तो वो ज्यादा स्पष्ट है, जो लोग ज्यादा समझेंगे। इस शोध पत्र में उत्तर बिहार के मधुबनी जिले के जलाक्रांत क्षेत्रों में Chenoplectiella articulata लाई की खेती एवं, लाई का मतलब यहाँ है वो ऑथर का नाम है, लाई की खेती एवं उसके प्रसंस्करण का सचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया है। स्थानीय स्तर पर इसे भी कहा जाता है, जबकि अमरैंथ के लावा से सादृश्य के कारण इसकी बिक्री रामदाना के नाम से की जाती है। इसके फलों तथा इन्फ्लोरेसेंस को प्राकृतिक रूप से इकट्ठा कर उनसे सूक्ष्म बीजों को अलग किया जाता है एवं उन्हें भून कर लावा बनाया जाता है। अब तक ज्ञात इस सबसे हल्के लावा, वन ऑफ द लाइटेस्ट पॉप नोन, कर इनके सूक्ष्म बीजों को अलग किया जाता है एवं उन्हें भून कर लावा बनाया जाता है। अब तक ज्ञात इसके सबसे हल्के लावे से दानेदार मिठाई बनाई जाती है, जिसे वास्तविक उत्पाद के रूप में बेचा जाता है। धान गेहूं जैसी जोत फसलों की कटनी से निवृत्त होने के बाद समाज के कमजोर वर्गों के लोग खूबी व्यवसाय में लगते हैं। आमतौर पर लावा बनाने का काम मलाहिनें करती हैं। इनके हरे अर्ध विकसित पौधों को दुधारू पशुओं को खिलाया जाता है। बीजों से लावे बनने के बाद बने भूसे को मिलाकर ग्रामीण इलाकों में मिट्टी की मजबूत दीवारें बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान का हमारे यहाँ इस जिले में सबसे ईस्टर्न टिप पर जो इलाका है वहाँ आज भी
बाढ़ के समय में कोई जब उपाय नहीं होता तो लोग कोठी में ये मुर्दे को रखते हैं, शव को रखते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं। और उस कोठी को बनाने में इसका जो सीड है, सीड का जो कोट है, उस कोट का प्रयोग होता है। चक्रीय फसल के रूप में खुबी का समन्वयन धान के साथ या फिर मिश्रित फसल के रूप में सिंघाड़े के साथ किया जा सकता है। इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखिए कुछ फोटोग्राफ है। फील्ड व्यू ऑफ ग्रोथ ऑफ एस आर्टिकुलाटा। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इधर दाहिने वाला ये सिंगल प्लांट ऑफ सिंगल आर्टिकुलाटा आप देखिए कैसा लगता है देखने में। नीचे देखिए वो महिला वो निकाल रही है उसके इन्फ्लोरेसेंस को, उसको जमा कर रही है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखिए किस तरह से उसका जो सीड निकाला गया है, वो हथौड़े से पीट करके उसको लकड़ी के हथौड़े से वो निकाल रही है बीज को। दाहिने देखिए और भी स्पष्ट है। उसके नीचे देखिए ए वुमन रोस्टिंग द सीड्स ओवर एन अर्थन स्टोव, चूल्हे पर सो इसको किया जाता है। और फिर दाहिने उसका पॉप है। नेक्स्ट वन। कितना छोटा पॉप है आप देख सकते हैं। हाँ, इधर देखिए लाई ग्रैनुलर स्वीट बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉप्स। उसके बाद देखिए एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रैनुलर स्वीट्स ऑफ खुबही। फिर उसके नीचे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एस आर्टिकुलाटा एज सोल्ड इन द मार्केट। किस तरह से इसको बंद करके पॉलिथीन से पैकेजिंग कर बाजार में बेचा जाता है। और सबसे दाहिने ग्रोथ ऑफ एस आर्टिकुलाटा, इन्हें ये आपको खास करके ये क्या कहते हैं सिंघाड़े के साथ किस तरह से ये शुरू में बढ़ता है। तो ये 12 फिगर्स हैं जो नट शेल में ये बताते हैं कि कैसे लोग इससे काम करते हैं। और भी फिगर्स में आता हूँ फिर। नेक्स्ट। Those involved in Khubhi business collect its inflorescences from the white during December to February after rainy season is over, और खास करके जाड़ा भी जब ओवर हो जाता है। By this time, the waterlogged areas become dry and this makes the harvest process easier. Figure 1 provides a field view of the growth of Khubhi plant in a paddy field after the harvest. पैडी की जो धान की जो खुट्टियां बची रहती हैं उनके बीच से ये निकलता है। फोटोग्राफ उतने अच्छा है नहीं। A mature plant of S articulata has been shown in figure 2 and 3. Figure 3 shows a rural woman harvesting the inflorescences. Figure 4 shows the stack of harvested stock bearing inflorescences. These stacks are stocked for about 30 to 60 days. ना करके उसको करीब करीब 1 से 2 महीने उसको वो जमा करके रखते हैं, फर्मेंटेशन वगैरह हो, धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट करे। This facilitates their disintegration at ambient weather conditions. Figure 5 and 6 show the seeds being hammered with bamboo sticks for separation of chaff from the minute seeds. A bamboo appliance called soup is utilized for separation of minute black seeds from chaff. Brooms of Phoenix dactylifera, यानी खजूर के झाड़ू से are especially suited to facilitate this separation. और झाड़ू नहीं, थोड़ा सा मुलायम होता है खजूर का झाड़ू, उसका उपयोग किया जाता है। Fine black seeds of S articulata are similar in dimension to the seeds of Nymphaea alba and Eleusine coracana. ये भेंट जो Nymphaea alba है उसका जो सीड है करीब करीब वैसा ही वही साइज होता है। या फिर मरुआ, आज रेडियो में सुन रहा था कि ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो यह मतलब और अनाज उस पर भी अभी काफी सरकार का ध्यान जा रहा है। जो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलते जा रहे हैं, उनको भी सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं करीब करीब 2 महीने, 1 से 2 महीने इसके स्टैक्स को यूं ही रख करके वो धीरे धीरे कमजोर होता है और तब इसके सीड्स उससे अलग होते हैं, हैमरिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सनलाइट दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट वन, अगला। हाँ, सीड्स आर केप्ट इन ए मॉइस्टेंड जूट बैग फॉर अबाउट 12 to 14 hours एंड देन रोस्टेड विथ सैंड इन ए बेकेड अर्थन पॉट। चूल्हा जो होता है ये कुम्हार का बनाया हुआ, उस पे इसको फिर भूनते हैं, रोस्ट करते हैं। द प्रोसेस यील्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइटेस्ट पॉप्स। फिगर हमने दिखाया है आपको। प्रिकॉशन ऑफ सीलिंग द फ्रंट पोर्शन ऑफ किल्न अर्थन चूल्हा इज मेंटेन्ड टू अवॉइड द पॉप्स गेटिंग बर्न्ट ऑन अकाउंट ऑफ हाई हीट। ये प्रिकॉशन रखा जाता है। द पॉप्स दस प्रिपेयर्ड आर लेफ्ट फॉर 3 to 4 hours फॉर कूलिंग and are then rubbed 3 to 4 times over a jute bag to ensure the separation of remaining seed pods. हाँ, इसके सीड पोड को हटाने के लिए बार बार इस तरह का काम करना पड़ता है, कूलिंग, रबिंग, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट वन। हाँ, thereafter takes place the process of preparation of lye, that is the granular sweet. The pops are sweetened in hot
इन कंसंट्रेटेड शुगर और जैगरी सॉल्यूशन, चीनी के सॉल्यूशन में या फिर ये गुड़ के सॉल्यूशन में, जिसको चाशनी बोलते हैं. आफ्टर द सेम इज ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर. This is as against some other sweet preparations from rice, sesame, etc. उससे थोड़ा सा उलट ये होता है, in which the pops are straightway put in hot solutions. उस सब में सीधे हॉट सॉल्यूशन में किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोसेस. More tasty sweets of Puhi are prepared by mixing condensed milk, खोआ में करके भी करते हैं, and are sold at a commensurate price. Iron casts are also used to provide desired shape to the finished products. Pops are also consumed in the form of pudding, खीर वगैरह भी सो बनाते हैं. तो ये इसका प्रोसेस है. नेक्स्ट वन. The pops have to be protected from coming in direct contact with the easterly wind. पूर्वा हवा से इसको बचाते हैं. With high ambient humidity and as such have to be instantly processed into the finished form. एक बार जब प्रोसेस शुरू कर दिया, इसको कंप्लीट करके ही फिर रुका जाता है. The granular sweets are packaged in polythene bags and are sold in the market. फोटोग्राफ हमने आपको दिखाया है इससे पहले. नेक्स्ट वन. The edible grain of Citrus articulata या Chenoplectella articulata is almost 20% of the whole seed. 100 kg of the seeds yield approximately 20 kg of the pop. Pops are sold to the retailers at the rate of ₹300 to ₹500. ये 2-3 साल पहले का है, अब तो इसका बढ़ गया होगा. But the price fluctuates as per market demand. Some other places in Bihar, अभी मैंने चर्चा की, like Bar Bakhtiarpur area in the Tal area of Ganga on its southern flank and Hajipur area on the northern flank of the river are also enumerated as hub of Phubahi business. गंगा के किनारे के जो इलाके हैं, क्योंकि वहाँ जो वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये फ्लोरिशिंगली ये ग्रो करता है, तो वो हब है. 2 हब, एक गंगा के इस साइड नॉर्दर्न बैंक पे और एक उसके सदर्न बैंक पे. ये 2 हब हैं, मैंने पहले भी कहा है. नेक्स्ट वन. Figure shows the plant of Trapa natans and S articulata growing together. आपने फोटोग्राफ देखा है कि दोनों किस तरह से एक साथ बढ़ रहे हैं in a wetland on the outskirts of Darbhanga town during November 2015. While the former was cultivated by the grower, the latter sprung up on its own. वो ट्रापा को तो लोग लगाते हैं, लेकिन उसके साथ ये खुद उग गया and was harvested during January-February 2016 after the trapa fruits were already harvested. उसको जब काट लिया गया, ट्रापा को हटाया गया, उसके बाद फिर ये हुआ नवंबर-दिसंबर में. This provides an example of integration of 2 aquatic crops, of which one is cultivated in an organized state while the other is yet to be fully recognized as crop. यही बात मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसकी जरूरत है, इस क्रॉप को भी रिकॉग्नाइज किया जाए. एक समय था आज से 15 साल 20 साल पहले जब मखाना को भी बाहर के लोग क्रॉप के रूप में नहीं करते थे, नहीं मानते थे, लेकिन आज तो मखाना हर जगह डिमांड में है इम्यूनोस्टिमुलेंट प्रॉपर्टी के कारण. नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्पोकन अबाउट इट. ग्रोथ ऑफ एस आर्टिकुलाटा इन सिंघाड़ा फील्ड कुड बी प्रमोटेड एज ए न्यू एडेप्टेशन इन वाटरलॉग्ड हैबिटेट्स ऑफ नॉर्थ बिहार इंक्लूडिंग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट. ये असल में अभी जो है कोरोना के बाद जो इम्यूनो प्रॉपर्टी है, इम्यूनोस्टिमुलेंट प्रॉपर्टी के कारण हर जगह इसका डिमांड हुआ है और लोग मखाना की खेती की ओर उमड़ पड़े हैं एक हिसाब से. तो यही बात मैं समझता हूँ, इसके भी जो गुण हैं खास करके सिट्रस आर्टिकुलाटा के, इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए. और मैं समझता हूँ इसके जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इस पर और भी काम करने की जरूरत है. नेक्स्ट वन. Figure 1 also shows the plants of S. articulata surface in a rice field after the harvest of paddy during November-December. Normally, the inflorescences of S. articulata are collected from paddy field during January-February. This provides an example of rotational cultivation of khubhi along with paddy, more particularly with the rice variety growing in lowlands. हाँ, ये एक important है कि lowland में जो rice variety होती है, उसके साथ ये रोटेशनल कल्टीवेशन का सिस्टम इसमें खुद डेवलप कर गया है, इसको आगे प्रमोट करने की जरूरत है. खुबी पॉप्स आर द ओनली फूड आइटम्स प्रेस्क्राइब्ड टू द पेशेंट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. अब तो कम हो गया है, लेकिन पहले जब स्मॉल पॉक्स काफी होता था तो मुंह को होठों को ऊपर नीचे करने में भी जब ये जो पेशेंट होते थे वो सक्षम नहीं होते थे, तब उस वक्त में इसकी काफी डिमांड होती थी और सीधे मुंह में डाल दिया गया, तो ज्यादा मुंह चलाने की भी जरूरत नहीं थी. जॉज articulation of jaws also was not possible
है ना, तो इसलिए बिकॉज ऑफ देयर इजी इंजेक्शन भीतर खुद चला जाता था विदाउट इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ जॉज. द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट देयर माउथ पार्ट्स विथ सोर्स इनसाइड. भीतर घाव होता है, इसलिए वो मुंह को भी नहीं चला सकते हैं. द प्लांट्स ऑफ एस आर्टिकुलाटा आर प्रेस्क्राइब्ड एज कैटल फीड फॉर मल्चिंग कैटल, milching cattle to increase lactation. Next one. Next one. Raw seeds of S. articulata have been found to be a predominant source of antioxidant activity on account of the presence of phenolics. ये इस पर पता, इस पर लोगों ने शोध किया है, भारद्वाज एट अल का पेपर है. As such, it has a potential to be used as an export item through proper phytochemical and nutritional investigations. It could also be used in developing value-added products and other food applications to derive their health benefits. It could further be used as food additive because of its flavor and nutritional contents. Compounds obtained from seeds of S. articulata have antimicrobial potential along with antioxidant properties and may play an important role in development of drug and other health supplements. अभी फोर्टिफिकेशन की बात चल रही है, राइस को भी सरकार कर रही है कि हम फोर्टिफाई करके तब लोगों को देंगे. तो फोर्टिफिकेशन एक अल्टरनेटिव है और ये पॉसिबल है करना. तो इसी सिलसिले में ये खूबी का भी सीड्स का ये फोर्टिफिकेशन कर लोगों में सप्लाई किया जा सकता है. खास करके मिड डे मील स्कूल में बच्चों के लिए जो स्कीम चल रही है उसमें इसकी काफी संभावना है. नेक्स्ट. Kubhi provides livelihood to poor and backward classes, mostly belonging to the Malla, Nonia, and Musahar castes. The business of Kubhi seeds and pops runs at a slow pace during the harvest seasons of paddy. धान के जब होता है उस वक्त में लोग पहले धान पर कंसंट्रेट करते हैं and wheat season में. During this period, they remain preoccupied with the agricultural operations related with the staple land crops. The year not visited by the ferocious floods proves to be a lean season for the Kubhi business and prices reach an all-time high. कहने का ये मतलब हुआ कि खास करके जो मेन स्टेपल क्रॉप है पैडी और व्हीट, उस वक्त में लोग मेनली उसमें लगे रहते हैं. उसके बाद लोग इस काम को करते हैं और जिस साल काफी बारिश होती है उस साल में इसकी बम्पर क्रॉप होती है. लेकिन जिस बार कम बारिश हुई तो फिर इसका भी घट जाता है. जाहिर है ये एक्सपोनेंशियल है. नेक्स्ट वन. The weaker section of the society should be trained to undertake its organized cultivation as a crop. Harvest and post-harvest popping operations also require to be standardized. Detailed chemical analysis of its food and drug ingredients and a proper nutritional evaluation through feeding trials on animals should be undertaken. ये सब ये इवैल्यूएशन अभी तक नहीं हुआ है, बड़ी समय से नहीं हुआ है. मैंने मखाने का ट्रायल किया था, फीडिंग ट्रायल IRI के बोटेनिकल ये बायोकेमिस्ट्री डिवीजन में. वो इस पर भी करने की जरूरत है ताकि कंप्लीट पिक्चर आवे. इसका न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, केमिकल स्कोर क्या है, इस सब सामने आने के लिए इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है. Further improvement in the quality of its products could be ensured through proper fortification with the desired food attributes. Next one. The process of dehusking the seeds, मतलब इसके सीड से इसका जो पॉप बनता है उसके बाद जो पार्ट बच गया जिसको कि सीड कोट कहते हैं आमतौर पर या जिसको हस्क बोलते हैं. Dehusking the seeds of S. articulata is very arduous and causes diseases like asthma to those who perform this operation. ये important है कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको दमा वगैरह की बीमारी होती है. Fine chaff produces respiratory problems. It becomes more acute in persons already suffering from tuberculosis, which is rather more rampant in this area. Women perform popping on earth under intense heat and suffer from the health hazard. ये सब कुछ डिफिकल्टीज है इसके साथ जिसको कि देखा जाना एड्रेस करना जरूरी है. नेक्स्ट वन. ये एक पेपर है अभी हाल में छपा है. Chenoplectiella articulata, a potential aquatic crop in Mithila floodplains of North Bihar. ये आपको E-Journal of Applied Forest Ecology E-JAFE खास करके ये देहरादून से छपा है. उसमें इसके सारे डिटेल्स छपे गए हैं. इसको हम अलग से इसकी चर्चा भी कर रहे हैं. नेक्स्ट वन. ये देखिए Chenoplectiella articulata, a potential aquatic crop in Mithila floodplains of North Bihar. जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम में ये है कि फूड सप्लीमेंट्री फूड के रूप में फॉडर, इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस फॉडर के रूप में भी है और लोग उसको लाते हैं खास करके वाइल्डरनेस से और
जानवरों को खिलाते हैं चारा के रूप में, इसको भी, इस प्रोसेस को भी स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। इसमें फॉडर वैल्यू क्या है, फूड वैल्यू थोड़ा बहुत हमने किया है और भी डिटेल में करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन। हाँ, अब इसका डिटेल्स है। कुभी इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में यहाँ है हमारे यहाँ दरभंगा जिले में, मधुबनी जिले में। तो ये देखिए, बोटेनिकल नेम सिनोप्लेक्टिएला आर्टिकुलाटा, एल लाई, फैमिली साइपरेसी, लोकल नाम खुभी रामदाना या खुभी दाना सीधे बोलते हैं। नेचर ये एक्वेटिक है और वाइल्ड है। ग्रोथ पीरियड अगस्त टू दिसंबर है। पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नवंबर टू फरवरी है। ड्यूरेशन ऑफ पॉपिंग दिसंबर टू अप्रैल है। प्राइस ऑफ रॉ इन्फ्लोरेसेंस 50 से लेकर के 60, मैं समझता हूँ कि और बढ़ गया होगा। प्राइस ऑफ रॉ सीड उसी हिसाब से 200 से 300 रुपये केजी, ये भी बढ़ गया होगा, ये 2 साल पहले का किया हुआ है। प्राइस ऑफ ग्रैनुलर पॉप्स 500 से 600 रुपये पर केजी। प्राइस ऑफ ग्रैनुलर स्वीट्स, इसको हटाइए, सामने आ गया ये, हाँ, ये 1000 से लेकर के 1500 रुपये पर केजी है। पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर कंजम्पशन सीड है। पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, खासकर ग्रीन एरियर पार्ट्स, फॉडर फॉर डोमेस्टिक कैटल। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि खास करके अर्बनाइजेशन का जिस पेस से बढ़ रहा है दुनिया में, इस इलाके में भी काफी बढ़ रहा है। तो जो ईंट के ये भट्टे होते हैं, उनकी जो चिमनियाँ होती हैं, उनको चलाते तो हैं दूसरे फ्यूल पर, कोयले वगैरह पर, लेकिन हाँ, ये करने की जरूरत है। व्हाट वुड बी द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एकड़ इफ सम, हाँ, इसको करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज्ड वे में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग जल जीविका के लोग इसको प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कीजिए और वर्कआउट करें। हम लोग, इसकी जरूरत है। अभी कोई डाटा उसमें उपलब्ध नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये वाइल्डनेस से कलेक्ट हो रहा है, और चिमनियों में सो इसका ईंधन का प्रयोग करते हैं, वहां इसकी खास सो खपत होती है इसके ड्राई प्लांट्स की। नेक्स्ट वन, हाँ, खुभी पॉप्स आर ओनली फूड आइटम प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, मैंने चर्चा की है इसकी। दिस इज देयर इज वेरी लिटिल लिटरेचर अवेलेबल ऑन इट्स न्यूट्रिशनल और फार्माकोकेमिकल एनालिसिस, हेंस देयर इज अ नीड टू नो द कंपोजिशन एंड फाइंड आउट द बायोएक्टिव कंपाउंड्स। हालांकि कुछ काम बाद में हुआ है जिसकी मैंने चर्चा की है इसी क्रम में, है ना। रॉ फॉर्म तो हमने दिया है, टेबल में ये है, हमने दिया है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, ये आप देखिए कितना हल्का लावा है। यहाँ स्क्रीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड सीड्स ऑफ सिट्रस आर्टिकुलेटस, द बेसिस ऑफ खुभी रामदाना इंडस्ट्री। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में छपा है। आर.के. गुप्ता पहले हुआ करते थे, टीचर प्रोफेसर हुआ करते थे। आपको गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, वहाँ हम उनसे सीड उन्होंने मंगवाया था। उस वक्त मैं एमआरएम कॉलेज में था प्रिंसिपल, तो मैंने उनको रॉ सीड केवल भेजा था, लावा नहीं। और जो भी एनालिसिस है वो रॉ सीड के ऊपर है, वो भी काफी प्रॉमिसिंग है। और कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं, कुछ तो केमिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ तो लॉस होता है, लेकिन कोई गेन भी होता है। तो इस पर करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, आगे ये देखिए, 150 ग्राम्स ऑफ सीड्स वेर प्रॉपर्ली क्रश्ड एंड वेर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग 3 सॉल्वेंट्स, खास करके हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल, उन्होंने जो किया और करके जो रिपोर्ट भेजा वो ये है। नेक्स्ट वन, आगे इसका और प्रोसेस दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, हाँ, रिएजेंट्स वगैरह जो यूज किए गए उसके विषय में है। नेक्स्ट वन, आगे फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, प्रोफाइलिंग ऑफ सीड्स ऑफ एस आर्टिकुलेटस, द ड्राइड पाउडर्ड सैंपल ऑफ सीड्स वाज एनालाइज्ड by the thermal desorption system. The conditions of gas chromatography were the same as mentioned except सारा डिटेल से जो उन्होंने किया था। नेक्स्ट, आगे, हाँ, इसके बाएं में देखिए कितना लेविश ग्रोथ है। ये ग्रोथ, ये आपको फोटोग्राफ एमएल एकेडमी स्कूल है, बहुत फेमस दरभंगा का, उसके कैंपस का है जब वाटर लॉगिंग हुआ करती थी। और देखिए कितना लश लेविश ग्रोथ इसका है। ये आपको सिट्रस आर्टिकुलेटस का। नेक्स्ट वन, हाँ, ये देखिए उन्होंने सारा मेथड, जल्दाल मेथड वगैरह यूज किया है, क्रूड फैट निकाला, प्रोटीन निकाला, ये सब उन्होंने इसमें कैलोरीफिक वैल्यू निकाला, ये सब इसमें दिया हुआ है। आगे, हाँ, इसमें वही है सारा डिटेल्स। दे शोड 0.0265 ग्राम एंड 0.808 ग्राम पर 100 ग्राम ड्राई मैटर अल्कलॉइड्स एंड सैपोनिन्स रेस्पेक्टिव। ये सब जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका उन्होंने पता लगाया और ये टेबल के रूप में भी आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, हाँ, ये देखिए न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ एस आर्टिकुलेटस सीड्स, मॉइस्चर, एश, प्रोटीन, फैट
6.15 है। मखाने में इतना फैट नहीं है, उसमें 0.1% है, इसमें 6.15। क्रूड फाइबर 20.53, कार्बोहाइड्रेट्स 80.56, फूड एनर्जी आपको 311। तो ये एनर्जी प्लांट है। उसके बाद आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक वगैरह वगैरह, ट्रेस एलिमेंट वगैरह भी है। नेक्स्ट वन। हाँ, अल्कलॉइड्स एंड सैपोनिन्स कंटेंट, इसके सीड में अल्कलॉइड्स भी पाए गए हैं, अमाउंट दिया हुआ है पर 100 ग्राम, और सैपोनिन्स वगैरह हैं। फिर वो अलग अलग जो सॉल्वेंट हैं, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, उसमें फिर बाकी फेनॉल वगैरह का जो कंटेंट है ये दिया हुआ है, उनका डिटेल पेपर है। नेक्स्ट वन। मैं भी उसमें उसे को-ऑथर हूँ। थर्मल रिसोर्प्शन सिस्टम वाज यूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ volatile and semi-volatile compounds which are responsible for flavor and fragrance in the sample. Diosgenin is a food saponin which is cancer chemopreventive and has therapeutic effect. Vanillin, which is used as flavoring agent in foods and beverages. Anthranic acid used in perfumes to imitate orange and jasmine. Carbonic acid is a fudging agent which is used in carbonated beverages. तो आप देखिए, लोगों को इसके विषय में पता नहीं था, लेकिन जब डिटेल केमिकल एनालिसिस हुआ ये सारी बातें भी सामने में आई हैं। इसीलिए बहुत जरूरत है कि एक एक इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। चाइना के जो महिला थी जिसको कि मलेरिया के खोज के लिए आर्टेमिसिया से नोबेल प्राइज मिला था, उसने सीरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स का स्क्रीनिंग किया था, तब जाकर के ये मिला। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो इस तरह के प्लांट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग, थोरो स्क्रीनिंग एक एक करके सारे न्यूट्रिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट इसके मिलेंगे। लेकिन जरूरत है कि उसको स्क्रीनिंग, थोरो स्क्रीनिंग उसकी की जाए। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। हाँ, ये डिटेल देखिए, लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स बाय मिथेनॉल फ्रैक्शन। इसमें लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है कि इसमें मिथेनॉल फ्रैक्शन में कौन कौन से केमिकल हैं, सारा डाटा उन्होंने दिया है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। हाँ, एंटीबैक्टीरियल अभी चर्चा हो रही थी, खास करके स्क्रीनिंग ऑफ 3 सीड एक्सट्रैक्ट, नेमली हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, जो तीनों सॉल्वेंट हैं, उसमें उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, खास करके ग्राम पॉजिटिव आपको बेसिलस सबटाइलिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एस एपिडर्मिडिस, एंड ग्राम नेगेटिव पी मिराबिलिस, ई कोलाई, है ना। तो इसमें ए जोन ऑफ इनहिबिशन वाज ऑब्जर्व्ड फॉर ऑल द मिथेनॉलिक फ्रैक्शंस at 17 milligram per ml, indicating antibacterial activity. No zone of inhibition was observed in any of the seed extract for hexane or chloroform fraction, indicating that they do not possess antibacterial activity for them. तो इसका कोई खास पार्ट जो कि एक्सट्रैक्ट हुआ और केवल हेक्सेन में, बाकी में नहीं आया। तो इस तरह से ये इतना एक्सटेंसिव वर्क करने की जरूरत है, और करके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम ये नेगेटिव के अगेंस्ट में जिसकी इफेक्टिविटी है, तो यदि हम ऐसा करें, एक्सट्रैक्ट करें, तो लो कॉस्ट जो अल्टरनेटिव है ड्रग्स के, हाई कॉस्टली ड्रग्स के, वो हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम पहले उतना इन्वेस्ट करें, सारा पता लगावें, तब ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट वन। हाँ, अब वही फिर इसके जो बाकी है, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये गुड अमाउंट में इसमें है। तो यदि हम ठीक से करें लोगों को सप्लीमेंट्री फूड के रूप में, अब जो लोग कहते हैं कि हंगर हैज बीन कंकर्ड बट नॉट द हिडन हंगर, तो हंगर, चावल अब इतना, धान इतना होता है देश में कि अकेला पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी पूरे देश को अभी खिलाता है, पूरे खिलाने की क्षमता रखता है। और अभी जो 80 करोड़ लोगों को 2 साल से कोरोना में दिया जा रहा है, तो सरकार के पास इतना बफर स्टॉक है, वो करता है, तो उस फ्रंट पर तो हम सक्सीड कर रहे हैं। लेकिन जिसको हिडन हंगर कहते हैं बाकी सप्लीमेंट्री फूड आइटम्स के लिए, तो वो हमें अभी इतना इन्वेस्ट करके हम उसको बनाते हैं। लेकिन हमारे जो अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर एक्सप्लोर्ड जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको करने, इन्वेस्टिगेट कर उनसे भी हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, लो कॉस्ट में फिर लोगों को सप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यही इसका मैसेज जो है ये है, देयरफॉर द कलेक्टेड स्पीसीज कैन बी यूज्ड इन वेल बैलेंस्ड डाइट्स एंड कैन बी कंज्यूम्ड अनरिजर्वेडली विदाउट एनी हेल्थ रिस्क। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, इसका भी है ये लिस्ट ऑफ ओलियो एरोमेटिक कंपाउंड्स इन सीड्स ऑफ, इसका भी लंबा चौड़ा लिस्ट है, उन्होंने किया है, उनके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एक बार सप्लाई करने पर फिर सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वन। हाँ, अब ये देखिए फिर कैसे दिखाई पड़ता है, बाएं में जो है सन ड्राइड प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज फॉडर, वो सुखा रहे हैं उसको जानवरों को खिलाने के लिए। दाहिने साइड में जो नेचुरल कंडीशन है, किस तरह से सिर्पस आर्टिकुलस प्लांट्स ड्राई कर रहे हैं अंडर सन,
और लोग इसको ले जा करके या तो जला देंगे या फिर फडर के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट आइकोर्निया क्रेसिपस के साथ इसका लंबा अपना एसोसिएशन बनता है। शेड में जो है अभी भी ग्रीनर है और जो सन अंडर सन है, कंप्लीट सन, वो धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखिए वही सिचुएशन है। आम का पेड़ लोगों ने लगाया है, लेकिन वाटर लॉगिंग के कारण उसके बगल में ये नेचुरली ग्रोन सिर्फस आर्टिकुलेटस के प्लांट्स हैं। नेचुरल सीन है ये। अब नेक्स्ट वन। हाँ, कंक्लूजन। इन सब इतने लंबे डिस्कशन के बाद we can conclude that the chemical composition of the underutilized seeds of Citrus articulators show that they can be a potential source of nutraceuticals as well as flavoring agents. Evidently, these seeds are a rich source of bioactive compounds and may be used in developing value-added products and other food applications to extract out their health benefits. In addition, they can also be used as food additives because of their flavor and nutritional contents. The obtained compounds have antimicrobial potential along with antioxidant properties and may play an important role in drug development, health supplements, and spa. Moreover, the good correlation obtained between the various assays employed and phenolic content strongly indicates that these phenolics are among the predominant source of antioxidant activity, खास करके कैंसर वगैरह को रोकने के लिए in S. articulatus. Also, the crop has a potential to be used as an export item through proper phytochemical investigation and nutritional analysis. Thus, there is enormous scope for future research and further pharmacological investigation on Citrus articulatus or Chenoplectriella articulata. So with this, we come to a close now. और इस सिरपस आर्टिकुलेटस के बहाने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं इस इलाके में जो ग्रो करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ वेरी वेरी प्रोलॉन्ग इनंडेशन, जिसमें कि आपको मखाना सिंघाड़ा है ही, और उसके बाद तो सीरीज ऑफ प्लांट्स हैं। आपको शाहरुख है, आपको ये पानी वाला केसौर है, वो भी सिरपस की ग्रोसस स्पीसीज है। साइप्रस के अनेक ये हैं। फिर तरह तरह के लीफी आपको आइकोनिया एक्वेटिका है, और भी कई तरह के हैं। अब सब अनएक्सप्लोर्ड है, अंडर एक्सप्लोर्ड है। और हम समझते हैं कि सबसे बेवकूफ जिसको कहा जाता है आइकोनिया कार्निया, इसको बेहाया, पतित वगैरह वगैरह कहा जाता है, क्योंकि इसको कहीं भी फेंक दिया जाए तो वो ग्रो करने लगता है। और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें होते हैं। लोग पहले जलाते भी थे उसको, लेकिन अब सरकार जो सप्लाई कर रही है तरह तरह का, ये आपको गैसियस लिक्विड सप्लाई कर रही है, तो धीरे धीरे लोग वो अब उतना नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिससे कि वो फिर धुआं वगैरह उसका डेंजरस होता है, लेकिन बायोमास एनर्जी के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। देयर इज इमेंस स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, खास करके आइकोनिया क्रेसिपेस है, आइकोनिया एक्वेटिका है, आइकोनिया कार्निया है, पिस्टिया है, और तरह तरह के प्लांट्स हैं जो कि बायोमास रिच भी हैं। हम लोग वी डू नॉट टेक इन प्रॉपर नोटिस ऑफ इट, और खास करके इंसिलेजिंग करके हम जानवरों का चारा भी उससे बना सकते हैं। तो ये यहाँ स्कोप है जो कि हमें करना चाहिए। जल जीविका के माध्यम से आप लोग अभी इनिशियल स्टेज में इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, और सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन्ड स्टडी से बहुत सारी ऐसी बातें निकलेगी जो फ्यूचर में वुड बी ऑफ यूज टू द इंटायर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, और कोई प्रश्न उठाना हो। थैंक यू सो मच सर। प्रश्न उत्तर सत्र की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ प्रश्न है हमारे पास कि रॉ प्राइस क्या रहता है सर वाही का? क्या है प्रश्न? मुझसे है? जी सर, आपसे ही है। क्या प्राइस क्या रहता है सर? प्राइस तो हमने दिया है। इसका लावा जो है वो करीब करीब 500 रुपये किलो के हिसाब से, इस वक्त उससे थोड़ा ज्यादा भी होगा, 1-2 साल पहले का प्राइस। सीड्स भी लोग परचेज करते हैं। सीड्स पर 2 बातें हैं। एक तो वाइल्डरनेस से, वाइल्ड से सीधे इसका इन्फ्रक्टेशंस इसको बोलते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। उसको 1 से 2 महीने रखते हैं, धीरे धीरे वो सड़ता है, गलता है, फिर हैमरिंग वगैरह करके सीड निकालते हैं, तो और उसको भी बेचते हैं। फिर सीड से लावा बना करके तब फिर उसको भी बेचते हैं। तो कमेंसुरेटली ये इसका रॉ फॉर्म जो है और इसका जो प्रोसेस्ड फॉर्म है,
दोनों ही ये अपने हिसाब से उसका ट्रांजेक्शन होता है। सर, सीड जो हम निकालते हैं उसका शेल्फ लाइफ कितना रहता है? जब हमने उसको हैमर करके निकाल दिया तो शेल्फ कितना लाइफ होता है? बहुत दिन का नहीं है, बहुत दिन का शेल्फ लाइफ नहीं रहता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि उसका जो सीड कोट है, उसको देहाती इलाके में जो भीत की दीवार होती है, उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए लोग उसको मिलाते हैं, और उसका कंज्यूम 1 साल के भीतर उसको कंज्यूम कर दिया जाना चाहिए। सीड वो रखते हैं स्टोर करके। सीड मैं एक बार गया था, जो करते हैं तो उसको वो उसमें ही डिडंट एग्री टू शो मी, वो उसको हुआ कि कोई इनकम टैक्स का ये आदमी आया है और हमारे इसको कर देगा। लेकिन अब धीरे धीरे हम समझते हैं बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, और मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कर रहे हैं साल भर हम समझते हैं सेल्फ लाइफ, सालों भर वो उपयोग करते हैं सेल्फ लाइफ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, इसको बॉयल करके भी खाया जाता है क्या, या सिर्फ लावा में खाया जा सकता है? लावा लावा लावा। अच्छा, इसका बॉइल्ड यूज नहीं है। अभी लावा के रूप में वो तो अपने ही खुद, मैंने कहा ना, वन ऑफ द लाइटेस्ट पॉप नोन, और वो अपने आप में कंप्लीट फूड है। उसकी प्रोसेसिंग करके उससे स्वीट्स, ग्रैनुलर स्वीट्स खास करके बनाए जाते हैं, और खीर वगैरह बना करके भी लोग खाते हैं, है ना। और ज्यादा वो स्टर्लिंग विंड और ये सब होने से डिसफिगर्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है। इसीलिए इसका जो ही तुरंत कंज्यूम किया जाना, तुरंत इसका प्रोसेस्ड आइटम बनना चाहिए, और तुरंत इसको मार्केट लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं है, कंज्यूम किया जाना चाहिए। करते हैं लोग कंज्यूम, ज्यादा स्टोर करके इसको नहीं रखते। क्या इसको भी मिलेट की तरह देखा जा रहा है क्या? मिलेट की मैंने चर्चा की कि आज मोटे अनाज का दिन है, गवर्नमेंट आज रेडियो में सुन रहा था, तो वो भी प्रचलन से बाहर हो गया है। तो उस पर भी अब फिर से बड़ा लोगों का ध्यान जा रहा है। और ये तो सारा अनएक्सप्लोर्ड, अंडर एक्सप्लोर्ड फूड है, जो कि वाइल्डरनेस से कलेक्ट करते हैं, और चूंकि दूसरा कोई काम नहीं है तो इसमें लोग अपना समय लगाते हैं, खास करके वीकर सेक्शन के लोग, नोनिया, मल्ला, मुसहर वगैरह, वो लोग इस काम को करते हैं। तो इसीलिए इसको शेप दिया, प्रॉपर शेप दिया जाना चाहिए इस इंडस्ट्री को। ये थर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मखाना इज द फर्स्ट एक्वेटिक प्रोडक्ट दैट इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। उसका मार्केट भी हो रहा है, उसके प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। जहां जहां वाटर लॉक एरिया है, जहां ट्रेडिशनली मखाना नहीं भी होता है, अब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबकी प्रायोरिटी इस पर चली गई है कि आप उसको लगाइए। पहले नॉन कैलकेरियस सॉइल में, खास करके जो 8-10 जिले हैं मिथिला क्षेत्र के, नॉर्थ बिहार के, दरभंगा, मधुबनी, फिर उधर आपको सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, फिर उधर पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये जिले हैं जहां पर इसकी खेती होती है। लेकिन वाइल्डरनेस में तो सब जगह पाया जाता है। आज ही मैं बोल रहा था, बता रहा था कि कश्मीर, ये इधर क्या नाम है, मणिपुर के लोकटक झील में ये लोग कलेक्ट करते हैं नेचर से, वहाँ खेती नहीं होती है, लेकिन इतना ज्यादा वो होता है, उपजता है, तो वहाँ के जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो वाइल्डरनेस से इसको कलेक्ट करते हैं, इसके फ्रूट को कलेक्ट करते हैं और नुक्शी लगा करके उसको निकालते हैं। बट देयर इज नो लावा बिजनेस इन लोकटक। तो ये जरूरत है कि यहाँ के लोग वहाँ का जो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं सिंजू के रूप में, फिर आपको ये सिंजू मतलब सलाद, या फिर इरोम्बा चटनी के रूप में, ठीक उसी तरह से इसका भी डाइवर्स यूज, केवल सिर्फ आर्टिकुलेटस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें से कुछ की मैंने आपकी चर्चा की। खोबी है, फिर आपको मोती है, फिर आपको चिचोर है, कई सारे, कौवा, ठुठिया, ओटेलिया जिसको बोलते हैं। ये पानी अटका हुआ है, और आप जाकर के देखें किसी भी वेटलैंड में इसमें कम पानी लगा हुआ है। ओटेलिया इज ब्लूमिंग, खास करके बहुत फ्लोरिशिंग ब्लूमिंग। ये वाटर बर्ड्स हैं, उसको फूड सप्लाई करता है। लोग भी उसका सीड निकालते हैं और कौवा ठुठी के नाम से उसको खाते हैं, आज भी खाते हैं। धीरे धीरे वेटलैंड्स की श्रिंकिंग भी हो रही है, ये भी एक पार्ट है। लेकिन लोग अपना एक बैलेंस बना करके काम करते हैं। वाटर लॉगिंग जिस इलाके में ज्यादा है वहां पर सारू को भी निम्फिया की एक स्पीसीज है जिसका अंडरग्राउंड राइजोम है, वो भी स्क्रॉलिंगली, खास करके इस साल पानी काफी हुआ है तो आप ये विजिबल है, देखने में आता है। जिस साल पानी 2019 में पानी कम हो गया था बहुत, ये सारी चीजें गायब हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि ये जितने तरह के एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और अभी तो एक्वेटिक एनिमल्स भी, सितुआ है, घोंघा है, अभी फरवरी के महीने में भी, फरवरी एंड होने को है, अभी भी बिक रहा है। पहला जो डोका जिसको बोलते हैं, वो अभी भी बिक रहा है। तो जिस साल बारिश काफी होती है उस साल ये अवेलेबल है, लोगों को अवेलेबल होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। वाइल्डरनेस से लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसका ये मॉनेटरी वैल्यू इसमें ऐड होता है।
अदरवाइज तब तक वो एक वाइल्ड प्लांट है। इसको ऑर्गेनाइज शेप देने की जरूरत है। देने से लोग इसको धीरे धीरे क्रॉप के रूप में मानेंगे और ऑर्गेनाइज भी कल्टीवेशन होगा। आपको खास करके धान के खेत में डीप वाटर पैडी जहाँ होता है उसमें आपने जो ही धान काट लिया उसके बाद उसकी खुट्टी वगैरह बच जाती है रेसिड्यू के रूप में, और उसके बीच से बहुत स्क्रॉलिंगली तो आपको सिर्फस आर्टिकुलेटस निकलता है। देखने में आपको लगेगा कि ये एक हिसाब से समझिए कि अल्टरनेट क्रॉपिंग, लेकिन है नहीं, वास्तव में है नहीं। उसी को शेप दिया जाना चाहिए। इसकी वैरायटी वगैरह अभी मैंने तो यहाँ भी कहा था आपको, खास करके मखाना शोध केंद्र जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा में अंडर ICAR सेटअप, केवल नाम उन लोगों ने मखाना दिया है, लेकिन जब वो स्टैब्लिश हुआ तो मैंने कहा था कि एंड अदर एक्वेटिक क्रॉप्स भी आप उसमें डालिए, उसके प्रियम्बल में डालिए, उसके नाम में डालिए। जरूरत हालांकि वो कर रहे हैं आप, लेकिन मखाना एंड अदर एक्वेटिक क्रॉप्स है ना, उसको सबको उसके अंदर लाने की जरूरत है। और आज न कल ये होगा, हो रहा है, लोग सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। वहाँ आपको इसका ट्रापा का जन्मप्लाज्म लोग इकट्ठा कर रहे हैं। खास करके आपने देखा होगा कि बहुत शुरू में 4 कांटा वाला ट्रापा होता था, 4 कांटा वाला, काफी हार्ड उसका ये कवर होता था। उसके बाद 2 कांटा वाला आया बाइस्पाइनोसा, पहले क्वाड्रिस्पाइनोसा होता था, अब बाइस्पाइनोसा आया। और अभी यहाँ मखाना शोध केंद्र में स्पाइनलेस आपको सिंघाड़ा आ गया, स्पाइनलेस सिंघाड़ा आ गया। इवन मखाने में लोग कहते हैं कि मखाने के पत्ते से मुंह पोंछ गया, मतलब इंटायर बॉडी बहुत स्ट्रांगली स्पाइनी, आप उसको छू नहीं सकते। और अभी एक नई खबर आई है कि चाइना में वहाँ उन लोगों ने स्पाइनलेस वैरायटी डेवलप कर दी है मखाने का। और यदि वो सच है, यदि वो खबर सच है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में सब जगह स्पाइनलेस मखाना आ जाएगा। ठीक उसी तरह से ये काफी स्लोलिंगली होता है ना। तो उस पर हम लोग देखें, आप लोगों ने शुरुआत की है, इनिशिएटिव इट्स गुड थिंग है ना। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाना जरूरी है। तो और कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, आखिरी प्रश्न किसी का। सर इसी क्रम में भेंट के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे या अगला कोई एपिसोड भेंट के बारे में अलग से करेंगे चर्चा, वैसे कर देते हैं, आप पूछिए, मैं बोलता हूँ उसके विषय में भी। वो भी तो एक्वेटिक क्रॉप में है क्या? भेंट भी वैल्यू ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि निम्फिया की एक स्पीसीज है, निम्फिया अल्बा, उस पर भी हम लोगों ने एक पेपर लिखा है। और आप तो मिथिला के रहने वाले हैं, उसको कोका भी बोलते हैं। उसका जो फ्लावर होता है कोका बोलते हैं। और वो जो जय जय भैरवी गीत है उसमें जो कोका की चर्चा है, इसका जो व्हाइट फ्लावर है यही है निम्फिया अल्बा, है ना, कोका, उसको कोका बोलते हैं। और उसका भी जो फ्रूट ऐसे ही डेवलप करता है, उसका फ्रूट तो बहुत लार्ज साइज फ्रूट होता है, और फ्लावर भी फुल फ्लेजेड फ्लावर भी होता है, व्हाइट फ्लावर। और धान के खेत में आप देखेंगे जहाँ वाटर लॉगिंग है, बहुत ही स्क्रोलिंगली वो आता है। और खास करके रेनी सीजन एंड करने के बाद, और चौथचंद जो पर्व है अपने यहाँ, आप देखते हैं उस दिन इसको चढ़ाना जरूरी होता है। आपको भेंट के फूल को एकदम व्हाइट कलर का होता है, उसको लोग तलते भी हैं, तल के उसके क्या कहते हैं सब्जी खाते हैं, उसको तरुआ जिसको बोलते हैं, उसके फूल से, उसके फ्लावर से। तो वो भी बहुत ही न्यूट्रिशनली सिग्निफिकेंट है, उस पर भी काम हुआ है। और उसका भी जो लावा है, उसका भी लावा बनता है, उसको भी लोग स्टोर करके रखते हैं। कई सारी बीमारियों में भी उसका उपयोग होता है लावे, ये भेंट का। तो और खास करके नॉन सीरियल फूड के रूप में जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उस दिन लोग इसको खाते हैं, निश्चित रूप से खाते हैं। तो नॉन सीरियल डाइट जिसकी काफी चर्चा होती है, उसके लिए ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ये सारे के सारे अल्टरनेटिव्स हैं। और उसको भी फिर उसी तरह से क्या कहते हैं, उसका भी लावा बनाया जाता है, वही प्रोसेस है, चूल्हे पर करके किसी में कहीं पर ये यूज किया जाता है बालू, किसी में नहीं यूज किया जाता है बालू। और फिर उसका भी लोग छाउर जिसको बोलते हैं, राख, उसमें रख करके उसको डेहिस कराया जाता है, उसको फटता है वो फ्रूट। और फिर तब उससे शुरू में लाल रंग का ये होता है, सीड होता है, लाल रंग का सीड। फिर वो धीरे धीरे वाइट ये येलोइश कलर ले लेता है, और फिर उसको भी भुना जाता है, उससे भी लावा बनाया जाता है। तो जो वाटर लॉग एरिया है जिसमें ये नेचुरली होता है वो ठीक है, अपनी जगह पर वो ठीक है, नेचुरली वो होता है। लेकिन देयर इज ए नीड टू प्रोवाइड इट एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यदि आपकी भूमिका हो सकती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप लोग इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, अभी सब लोगों की नज़र उस पर नहीं है, लेकिन यदि वो
हम लोग सक्सीड करेंगे इस वेंचर में तो फिर सबकी नजर उस पर जाएगी, और खास करके सबका फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ये जितने भी अंडर एक्सप्लोर्ड प्लांट्स हैं उन सब की स्क्रीनिंग, खास करके ड्रग के कंपोनेंट के लिए एनालिसिस होनी चाहिए, थॉरो एनालिसिस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उस तरफ लोगों की नजर नहीं गई, अभी नजर नहीं गई। हमने उसका उदाहरण दिया आर्टेमिसिया का, चाइना की जो वो महिला साइंटिस्ट थी, उन्होंने सीरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स का लेबोरेटरी में जैसे करते हैं इन्वेस्टिगेशन वैसे किया, और तब जाकर के आर्टेमिसिया में एंटी मलेरिया कंपाउंड मिला, और उस खोज के 50 साल के बाद उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो इसी तरह से करने की, इस इलाके में भी करने की जरूरत है। और भी प्रश्न? As we have limited time, I would like to bring this session to end. समय के अभाव के कारण चलते हुए सेशन को एंड की तरफ ले जाते हैं। A heartful thank to our guest speaker, Vidyanand Jha sir, for his valuable knowledge and sharing his experience with us. Thanks to all the participants for being so कुछ patient. कुछ अच्छा लगा, कुछ काम की चीज थी इस डिस्कोर्स में? Was it worth? Yes sir, it was. Was this exercise a worth of its own? ठीक हुआ, जो आप चाहते थे उसमें कुछ मिला उस तरह का? Yes sir. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much sir. Thank you। So we can have one picture. सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, and then we can have one picture with sir. तो सभी के साथ पिक्चर लेते हैं। लोग जुड़े हुए हैं सर 27 लोग थे, अभी 25 हैं। मेरे रिलेटिव हैं, उनका लैपटॉप है, उससे बात करें। We will take one picture. Thank you everyone for attending this session. For knowing more about Jal Jeevika, you can follow us on Instagram, LinkedIn. And I would like to tell you that the next Aquatalk कितने लोग हैं session, जुड़े हुए? सर 27 लोग जुड़े थे, अभी 25 लोग हैं। So I would like to tell you that we will be having our next Aquatalk session on International Women's Day on 8th of March. So I would like to invite everyone and spread the message to everyone on the special day of International Women's Day. We will be having a great session. Thank you everyone for joining us today. Thank you all. Stay tuned for the next session. Thank you, sir. Thank you, sir.